नमस्कार, वेलकम टू आरसीआईज नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इन एएसडी एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट मिसेस इंदु चसवाल। शी इज़ वर्किंग एज कोऑर्डिनेटर एट एसएएसआर, जो हमें आज के टॉपिक के बारे में बताएंगे इन्फॉर्मेशन। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेरीज हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112208, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। मेल कर सकते हैं rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। जैसे कि मैम आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली इंटरवेंशन के बारे में फॉर एएसडी चिल्ड्रन। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो इसमें टर्म यूज़ किया गया है अर्ली इंटरवेंशन, बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके, एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके बच्चे की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, I would say, phase of intervention in the life of a child with special needs, क्योंकि ये सबसे पहला इंटरवेंशन होता है जो हम बच्चे को देते हैं। और आइए हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। The term early intervention refers to services given to very young children with special needs, generally from birth until the child turns 3. For this reason, these programs are sometimes called birth to 0 or 0 to 3. तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो हम देते हैं बच्चों को, ये बर्थ से लेके 3 इयर्स तक हैं। बट वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर, दैट अ कंफर्म्ड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म कम्स अराउंड द एज ऑफ 3, and because it is such an invisible condition that very often पेरेंट्स को मालूम ही नहीं चलता 2-2.5 साल तक कि बच्चे में कुछ डिफरेंस है। सो आई वुड से दैट लेट्स गिव some kind of extension to children with autism and say that their early intervention is 0 to 4 years or 4.5 years. मैम जैसे आपने डेफिनेशन में बताया अर्ली इंटरवेंशन के एक एज क्राइटेरिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड आवर एक्सपर्ट हैज टोल्ड बर्थ टू 3 years और वी कैन से 0 to 3 years. Absolutely. तो व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस कि हमने ये एज लिमिट ली है, मतलब हम इसको 5 years 6 years क्यों नहीं हमने इसको रखा, मतलब कुछ बेसिक इसका प्रिंसिपल है? Yes, बिल्कुल है, and you will see it in the next slide. First of all, we give early intervention to provide support to families for their children's development, to promote children's development in key domains such as communication or mobility, to promote children's coping confidence and to prevent the emergence of future problems. Now, the need for early intervention, the rate of development of the preschool child is so rapid that the child can be given more learning experiences. Children are by nature very flexible and their growth and development can be modified extensively in a variety of directions. Parents can also benefit from an early intervention for the child because they can receive guidance. तो जैसे आपने अभी पूछा कि early intervention, why is it so important for children? First of all, when a child is very very young and the parents notice that there's something very different about their child, so what happens is that they need a lot of support because they are going through a lot of emotional difficulties themselves, acceptance, denial, anger, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ. So an early intervention program focuses a lot on the family.
and the family is supposed to be, you know, like the school for the child, the first school of learning for the child. The other thing is that it's known all over the world that the development of a child, the brain of a child matures very rapidly in the first few years of life. Brain बन तो जाता है, but it matures and it fully develops when it interacts, or when the child interacts with the environment. And initial एज में ये जो interaction होती है with the environment, it's through the senses. देख के, सुन के, the child touches things, he wants to explore the environment. So if we give a good exposure to the child, the right kind of exposure according to the differences in the child, then chances of the brain maturing or maturing to its maximum potential are the highest. And the child also gets very ready. Let's say that this is a kind of a school readiness program. हम लोग एक मेडिकल मॉडल से एक सोशल मॉडल की तरफ जा रहे हैं विद लॉट ऑफ चेंजेस, अमेंडमेंट्स इन द PW एक्ट. वी वांट इंक्लूसिव एजुकेशन टू कम अराउंड. सो अगर हम अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में अच्छा अर्ली इंटरवेंशन देंगे बच्चों को, तो जब उनके स्कूल जाने की एज होगी, तो इंक्लूजन मे बी possible for the kids. It may be easier for the kids because the child comes as near to its regular or neurotypical peer as possible. So that's why early intervention is very, very important. There are other aspects to early intervention. मैम, जैसे कि आपने बताया अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों कंसीडर करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, तो इसमें जैसे कि आपने मेन पॉइंट बताया कि जितना एक्सपोजर मिलता है उतने लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और ये पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि उनको पता चलेगा कि बच्चे में मतलब किस तरह की प्रॉब्लम है, उनको कैसे डील करना है. बिल्कुल. और the other thing is, it's not only just the exposure. How does this exposure help? Let's see. It promotes biological, physical, emotional, social, and intellectual growth of the child and for ecology in which the child lives. When the child has some kind of disability, the early intervention is more effective than introducing compensatory or remedial intervention at a later stage. So early intervention, we are saying that, you know, the child will progress maximum at the highest rate when the child is younger. That's during early intervention. But how does that growth happen? Because the child learns more. So the child's, you know, learning about the environment. There are colors in the environment. There are things in numbers in the environment. There are items in the environment. So identifying those things, learning their names, and social playing with other children, which is the most important thing in the development of a child, because most kids learn language through play. They learn concepts through play. And in autism, that is the main difficulty, that they will not interact with their peer group. So if we provide early intervention and we teach the child to play with other children, then automatically the emotional, the social and intellectual development will happen at a greater pace. The other thing is that after say 5 or 6 years, the child's mind gets very set about things, very rigid in autism about things around him. And if we try to give intervention at a later stage of life, a compensatory thing, and not in the early years of life, then the rigidity of autism will set in a lot, and then the child may not be able to learn as much as he could do earlier. So rather than waiting and teaching later, it's very essential that we teach in the early stages when there's more flexibility in the child. तो इसका मतलब अर्लियर एज में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू मेथड्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर. जैसे कि आपने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, एवरी एस्पेक्ट्स. Absolutely. All right. Now, the unique aspect of an early intervention model is that it is simple to implement. People use it because it is inexpensive, because it focuses where it should, with the families
in the child's natural environment, and it does work. So what is the uniqueness of early intervention? Early intervention की खास बात क्या है कि बच्चा अपनी इकोलॉजी में, अपनी ही सराउंडिंग्स में वो सब कुछ सीख रहा है, अपने प्राइमरी केयर गिवर्स से, अपनी फैमिली से वो सीख रहा है, और वो जो लर्निंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोमेटिकली जनरलाइजेशन होती है in that environment. So if the mother is teaching the child to use a spoon to eat, she has hundreds of opportunities in the day to work on it. Because when the child goes to a center, then you know कि center में वो 2 घंटे रहता है एक छोटा बच्चा, या 1 घंटे रहता है, टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी वहाँ. But the training in the house is an ongoing process. Now, of course, when the child goes to school or he goes to a center, we do tell the families to work at home. But then again, you know, अगर वो intervention ही around the home होगी, अगर parents को ये message मिलता है कि they are the teachers, then they will work more at home. So it empowers parents to be teachers of their children, which is a very important thing because our kids stay most of the time at home. So right from the beginning, we are empowering the mother, father, siblings to work with the child and just not be dependent on the school. So that means parents जो है वो बच्चों के आगे ग्रोथ के लिए उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस कैरी आउट भी नहीं कर पाएंगे. जी, इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन के मॉडल्स अलग अलग हैं. कुछ जगह पे सेंटर पे भी होता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी इन अर्ली इंटरवेंशन. सो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन. First is the home-based model. Potage is an example of home-based early intervention model. It promotes parents as primary teachers. Potage emphasizes the parent's role as the child's primary teacher. A member of the team visits the home to train and monitor. Periodic meetings at the center take place. सो जो पोटाज है एक एग्जाम्पल है एक होम बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का. एंड हियर देयर इज अ विजिटर, होम विजिटर who comes home and trains up the family members and makes a program for the child. Of course, a baseline assessment is done. There's the potage checklist. We also have other checklists. हमारे पास उपनयन है और वो भी एक अर्ली इंटरवेंशन चेकलिस्ट है. तो पहले हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं और फिर टारगेट्स देते हैं फैमिली को. इट कैन डिपेंड, यू नो, इट कैन बी लाइक द होम विजिटर कम्स once a week or once in 10 days and gives some targets, and then again when the home visitor revisits, then kind of evaluates the program. If there is any need, वो पेरेंट्स को थोड़ा चेंज करके, अगर कुछ काम कर नहीं रहा तो पेरेंट्स को बताएंगे किसको कैसे अलग तरीके से किया जा सकता है, मॉडल करके दिखाएंगे, खुद करके दिखाएंगे. एंड ऑल्सो दे मॉनिटर द होल प्रोसेस एंड टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड. वेरी ऑफन जब कोई सेंटर एक होम बेस्ड प्रोग्राम रन करता है, सो दे हैव पीरियोडिक मीटिंग्स एंड समटाइम्स दे हैव पीरियोडिक ग्रुप मीटिंग्स ऑफ पेरेंट्स, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इनकरेजिंग. क्योंकि आपके पास होम विजिटर्स हैं जो अराउंड अबाउट 15 फैमिलीज़ के पास अलग अलग दिनों में जाते हैं, बट व्हेन दे गेट टुगेदर एट द सेंटर once in 3 months or once in 2 months, it is really very nice to share experience, and then there is a spirit of learning, a spirit of competition, healthy competition between mothers, and who benefits? It's the child. So we have the next kind of the model. ये जैसे आपने होम बेस्ड मॉडल में बताया कि एक टीम होती है जो होम में विजिट करती है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, और इसमें बेनिफिट होता है चाइल्ड एंड फैमिली को. बिल्कुल. इसमें जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, फिजिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, एक्सपोजर, एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर टीम घर पे आ रही है बच्चे के पास, तो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी से, अपने पीयर मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से लिमिटेड हो जाएगा, तो सोशल ग्रोथ उसकी मे बी लिमिटेड हो सकती है. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन.
तो लाइक जो जनरली जो होता है होम बेस्ड प्रोग्राम्स में, दे आर नॉट मेनी प्रोफेशनल्स विच कम होम. जनरली द पर्सन इज ट्रेन टू डील विद, जो आते हैं होम विजिट के लिए, द पर्सन इज ट्रेन टू डील विद मेनी मेनी थिंग्स. सो एज अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द फैमिली, they are encouraged to take the child outside. now बच्चे को अब फैमिली बाहर क्यों नहीं लेके जाएगी, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चे के साथ. now उन्हीं प्रॉब्लम्स को के साथ डील करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है. एंड वंस द पेरेंट्स आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर ट्रेन्ड, दे विल टेक द चाइल्ड एवरीवेयर. now of course even in a home based program कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं इस प्रोग्राम की, एंड उसके लिए कई बार सेंटर में जाना ज़रूरी होता है. सो वील टॉक अबाउट सेंटर बेस्ड सर्विसेज. नाउ सेंटर बेस्ड सर्विसेज जो है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बच्चा सेंटर में जाए. ऐसा भी हो सकता है कि वंस इन अ वाइल सेंटर में जाए. वी ऑल्सो हैव सर्टन मॉडल्स इन दिल्ली इटसेल्फ वेयर मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर रनिंग. Action for Autism is an organization that runs a mother-child program, and there the child goes to the center every day with the mother. It's an early intervention program. So let's see what is a center-based program. Center-based early intervention. The family, the primary caregiver for certain, takes the child to the center where the child is assessed, and a team of professional, paraprofessionals and non-professionals work together for the early intervention. They provide the program that is implemented at home. So हम देख रहे हैं कि सेंटर बेस्ड प्रोग्राम भी होता है, जहाँ पे प्रोग्राम लेने के लिए या तो फैमिली जाती है और घर में आके प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है, और यहाँ बच्चे को वही सर्विसेज मिलती हैं. Now for example, a child with autism needs sensory input. Now for the family to create a sensory integration program at home is quite difficult. बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके लिए. सो वो एक सेंटर में ही मिल सकता है. तो इसीलिए फिजियोथेरेपी चाहिए बच्चे को, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चाहिए. सो फॉर दीज काइंड ऑफ इंटरवेंशंस द चाइल्ड हैज़ टू विजिट द सेंटर, बिकॉज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट होम वुड बी स्लाइटली difficult in this case. We are only talking about these two models today. There are many other models which are just a takeoff of these models. यानी कि और भी बड़े models हैं जिनको नाम दिया गया है, precision method and so on, but they are basically based on these two methods of early intervention. Ma'am, basically you are working for these kind of children. तो जैसे कि आपने इन मॉडल्स के बारे में बताया, होम बेस्ड मॉडल्स एंड सेंटर बेस्ड मॉडल्स, अगर हमारे व्यूअर्स में पेरेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल बेटर है जो फॉलो करना चाहिए ऐसे बच्चों के इंटरवेंशन के लिए? आई वुड से कि एक अगर मिक्स होगा तो इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज समटाइम्स गोइंग टू अ थेरेपी सेंटर हेल्प्स. बिकॉज देर क्या है कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो बच्चे को एक बॉल के ऊपर बैलेंस करवा रहा है, तो ठीक है शायद उनके घर में बॉल नहीं होगा, लेकिन उनको आइडिया लगेगा कि अगर वो बोल्स्टर पे करवा रहा है तो उनको आइडिया लगेगा कि हम अपने घर पे किसी कुशन पे या किसी सोफा की जैसे कुशन होती है उस पर जंप करवा लें, तो उनको आइडिया लगेगा हम झूला लगा लें. सो कई बार क्या होता है कि व्हेन यू सी यू कैन डू बेटर. If I just counsel someone without showing it, वो इतना effective नहीं होगा. So I think a combination is very good. The parents can follow the program at home, but once in a while, if they can take the child to a center and observe how the special educators, how the occupational therapists and the physiotherapists, they work with the child, then the parents will learn very well and implement it at home also. So I think a combination is good. जी, तो ताकि थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाए बच्चे को और पेरेंट्स को भी, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो. Yeah, but the essence of early intervention is family training. जी. It has to be implemented at home also, and at home I would say is most important. So even अगर वो सेंटर में आ रहे हैं उन्हें खुद करके दिखाना चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए प्रोफेशनल से कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. Now we will briefly touch upon autism spectrum disorders before going into autism specific early intervention. Autism spectrum disorders. It's a recap. Social communication disorder with repetitive or stereotypical behavior and or fixed interests. 4 to 5 times
more prevalent in boys than girls. ASD in toddlers all have difficulty with pre-verbal social communication, looking at others' faces, reciprocal back and forth interactions with partner, sharing interest, sharing attention about interest. Some fixed or repetitive interests and behaviors may not appear until later. Challenging behaviors related to communication difficulties and or fixed interests. So before we go on to early intervention in ASD, this was a brief, recap into what is ASD and how does ASD or autism spectrum disorder affect a toddler. हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें ऑटिज्म है, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं करते या बहुत कम करते हैं, लिमिट में करते हैं, जो उनकी एज के दूसरे बच्चे करते हैं. वन ऑफ द थिंग्स इज मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, looking at other people's face. The other thing we know is that you hardly ever find them sharing any interest. आपको बहुत कभी कोई बहुत ही हाई फंक्शनिंग बच्चा होगा तो दिखेगा कि एक छोटा बच्चा कि उसको कोई टॉय मिलता है तो वो मम्मी को लाके दिखाता है कि मुझे टॉय मिला है. शेयरिंग समथिंग, इंटरेस्ट, वो अपने आप हैप्पी रहेगा. द चाइल्ड विल बी वेरी हैप्पी विद द टॉय, but the need to show off with that toy or show the toy to others may be very, very limited. So we see that in autism, basically it's a social communication deficit. Children may or may not speak. The ones who speak have got a lot of language deviances, odd language. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें एक्सप्रेशन नहीं होता. एक्सप्रेशन की बहुत कमी होती है या बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल. और कॉम्प्रीहेंशन उनका कैसा होता है? देखिए, लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट्स जैसे होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. सो सम ऑफ ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे. इट कैन बी पॉसिबल दैट द चाइल्ड हैज अ बेटर रिसेप्टिव लैंग्वेज देन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. One cannot say that both the languages will be at the same level, but yes, difficulties are there both in understanding as well as expressing. And a very small example, a child knows the word ball. वो बॉल उसने बहुत बार सुना है और उसको बॉल बहुत पसंद है और वो बॉल शब्द का मतलब जानता है. But when I put a ball on the table and I put a toothbrush on the table and I say give me the ball, मुझे बॉल दे दो, तो इसको रिसेप्टिव मेरी लैंग्वेज को वो समझेगा नहीं. उसको बॉल मालूम है लेकिन मुझे बॉल दे दो, व्हाट डज इट मीन, ही डजंट नो. ही मे कीप लुकिंग एट द बॉल बट नॉट गिव मी द बॉल. सो दीज आर द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दे माइट हैव. They might have certain words, but when it comes to stringing words into sentences and understanding the meaning, it may be very, very limited. We go to more behaviors. Screening. Okay, it's screening of a child with ASD. This can be done at 18 months and the child at risk of ASD can be started on an early intervention program as early as this age. The screening tool is CHAT, Checklist for Autism in Toddlers. Later, around 30 months, a diagnostic assessment is done for a confirmed diagnosis. Red flags for toddlers: not showing objects, no pretend play by 18 months, avoiding looks to others' faces, absence of proto-declarative pointing, repeating actions over and over again, difficulty adjusting to न्यू रूटीन्स. सो अर्ली इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना है कि हम कितनी अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं इंटरवेंशन को. अब्रॉड, दैट इज मोस्टली इन यूके एंड यूएसए ऑफ कोर्स एंड सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, 18 मंथ्स में एक स्क्रीनिंग हर बच्चे की होती है, सभी बच्चों की होती है, एंड इट इज नोन एज चैट, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स. और वहाँ पे कुछ अगर अलर्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं तो एकदम काम करना शुरू कर दिया जाता है. हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि बड़े बड़े सिटीज़ में चैट फॉलो होता है. समटाइम्स 2 years, 18 months, 20 months के बच्चे आते हैं. पेरेंट्स आर वेरी अवेयर, सम पेरेंट्स. और जब वो आते हैं तो हम जो रेड फ्लैग का मतलब है डेंजर मार्क्स. सो व्हाट आर द डेंजर साइंस और व्हाट आर द साइंस विच रिफ्लेक्ट अ possibility of autism at 3 years diagnosis?
So these are, like I mentioned earlier, not like looking into faces of other people. The other thing is no pretend play. Pretend play means like by about 14 to 15 months, the child should develop pretend play, which means कि बच्चे को अगर हम एक छोटे साइज का बेलन देते हैं और क्ले देते हैं तो वो उसको रोटी बेलेगा, या अगर उस बच्चे को हमने कोई किचन का सेट ला के दिया है तो वो प्रिटेंड करेगा कि वो खाना बना रहा है और घर के फैमिली मेम्बर्स को खाना खिलाने की कोशिश करेगा. द चाइल्ड्स फूड कैन बी बिट्स ऑफ पेपर. And the little kids, they'll pick up some vegetables, raw vegetables, put them in a bowl and pretend as if they're cooking it and then serve to others. So this kind of pretend play is very, very limited or absent in small children. मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ क्राइटेरियंस जिससे हम चेकलिस्ट के थ्रू ये देख सकते हैं कि कुछ डेंजर साइन लाइक जो एक अर्ली इंटरवेंशन के लिए हम देख सकते हैं कुछ बच्चों में फीचर्स हैं कि बच्चा ठीक से प्ले नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है. तो ये कुछ साइंस हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments.
सुनो जो कहानी He कह loves रही Mohammad Rafi है, and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें He also सुनानी uses crutches for mobility. है। धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे रेड फ्लैग्स, जो कि हम टॉडलर से हमें पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, पढ़ाते हैं। जी, जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चे खिलौनों के साथ मीनिंगफुली नहीं खेलते, देर इज़ लैक ऑफ प्रिटेंड प्ले, एंड अनदर वेरी अलर्टिंग साइन इज दैट द चाइल्ड लैक्स जॉइंट अटेंशन, विच मीन्स कि if I point to something like this, the child may look at my hand but not focus on what I'm pointing at. तो बच्चे को समझ में नहीं आता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरा जो है कि मैं पॉइंट कर रही हूँ तो मैं किस चीज़ को दिखा रही हूँ. The other thing is कि वो खुद भी when they want something, they will not point and show. They will rather take an adult's hand and pull that person towards where the thing is lying. And sometimes, you know, it's very difficult when the child is not pointing towards what he likes, towards what he wants. It becomes very difficult for the parents to know what he wants because he's not even speaking. So these are some of the alerting signals of autism, and if we start working, the moment we see these signals, then a lot of compensation can be done, and sometimes the child who would become a very moderately autistic child would, you know, go to a more milder form if he receives early intervention. Now we also have to see that in an early intervention program, what is the team? Who are the professionals or the non-professionals needed to carry out this early intervention program? So how does one implement it? Services include special education, speech therapy, occupational therapy, and physical therapy provided either in a center or in the child's home. The hope is that these services provided early will address any delays in development so that the child will not need services later on. Stages in the process of an effective early intervention. First step into the early intervention program begins with referral to early intervention official. Professionals must refer babies and toddlers to the early intervention program. Step 2, meeting initial service coordinator. Step 3, having child evaluated. Step 4, making a plan for services. Step 5, intervention by the team. And step 6 is monitoring and follow-up. So, जो हमें अर्ली इंटरवेंशन कैसे पहुंचाना है बच्चे को, सो एक टीम है, एंड लाइक वी मेंशन द टीम हैज स्पेशल एजुकेटर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, occupational therapist, and I would like to say one thing here, that although the name of the speech therapist is included in the list, but we want the child first to work a bit with the occupational therapist and the special educator and be ready to learn speech. बिकॉज जो बच्चा अटेंशन ही नहीं देता है, जिसको सीखना नहीं आता है, उसको हम एकदम से एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ अगर छोड़ देंगे, जो कि इस बच्चे का मोस्ट ग्रे एरिया है, मोस्ट डिफ़िकल्टी का एरिया इस बच्चे का स्पीच है, और हम इसको सडनली डाल देंगे विद स्पीच थेरेपी, it may not be a very good idea. First, we have to work on very simple attending skills like sitting, looking at others, bonding with others, and then we can go to more specific
professionals. Of course, if there is a speech and language pathologist, a speech therapist who understands the needs of a young child with autism, then it may be useful. Otherwise, it can be the other way around. It can be very, detrimental to the child if the child has not learned pre-learning skills like attention, making eye contact, and then just throwing him into therapies. So first we have to work on attending skills. It is also, I would say, a duty of the medical practitioners, the doctors, to know about services for these children. Because identifying a case is easy. पेरेंट्स सबसे पहले किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फेथ होता है अपने डॉक्टर पे. अगर डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद, और डॉक्टर ने अगर चैट भी किया है और देखा है कि शायद बच्चे में अलर्टिंग सिग्नल्स हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा इफ़ द डॉक्टर डजंट डायरेक्ट देम टू द राइट प्लेस. Because very often parents are just running from one doctor to another, from one person to another in clinics, and spending such a lot of money and not knowing that the child actually needs now an early intervention. So I think the first thing is that it's the duty of the doctors to direct the families to early intervention centers, and then early intervention centers में coordinator होगा जो parents को पूरा कुछ समझाएंगे कि हम ये services देते हैं और आप क्या चाहोगे. So the parents may opt कि हम कभी कभी आपके पास आएंगे और हम घर में करेंगे. So a home plan has to be given, or if center based services हैं तो some parents prefer to come to the center. Because हमारे कंट्री में अभी भी क्या है कि मदर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर है बच्चे की. शी हैज़ टू लुक आफ्टर द होम ऑल्सो. सो बोथ द केसेस हैपन. समटाइम्स द मदर्स फील आई कैनॉट लीव होम, I have 100 other things to do, so I will just take out time at home and work with my child. On the other hand, कुछ मदर्स ये भी फील करते हैं कि मैं अगर घर में रहूँगी तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा वर्क करने के लिए, लेकिन अगर मैं 1 घंटा निकल जाऊँगी तो मैं सेंटर पे काम करके आऊँगी अपने बच्चे के साथ. सो इट डिपेंड्स ऑन फैमिली डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल पेरेंट्स हु आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन. सो पहले एक बेसलाइन असेसमेंट होती है बच्चे की, और बेसलाइन असेसमेंट कैसे करते हैं? हम पोटाज गाइड यूज़ कर सकते हैं, उपनयन यूज़ कर सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन चेकलिस्ट हम यूज़ करेंगे, और फिर छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे बच्चे के लिए, और मदर को ट्रेन करेंगे कि ये गोल्स कैसे. सी इट्स, वी आर सेइंग मदर बिकॉज समहाउ वी ऑलवेज in India it's the ma, but otherwise the whole family, we train them up like how to work on these goals at home, and then like I said earlier, the program is monitored. तो every member of the family should be included in ideally मतलब एक overall अच्छे डेवलपमेंट के लिए पूरी फैमिली इंक्लूडेड होना बहुत बिल्कुल. और बच्चे ने सिर्फ ये नहीं सीखना कि माय मदर इज द ओनली पर्सन जिसको मुझे रिस्पॉन्स देना है. जी, ही हैज टू लर्न टू गिव रिस्पॉन्सेज अक्रॉस पीपल. यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द होल फैमिली इज ट्रेन्ड. मैम वैसे बेसिकली हम यहाँ बात तो कर रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन की. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि अर्ली इंटरवेंशन हम तभी दे पाएंगे जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा बच्चे का. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि कैसे पेरेंट्स मतलब अवेयरनेस हो कि वो अर्ली आइडेंटिफाई कर सके. पेरेंट्स करेंगे, डॉक्टर करेगा, या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए? See, a lot of responsibility lies with the doctors, like I said earlier, कि ये ऐसा डिसऑर्डर है कि ऐसे जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसमें आपको मालूम चल जाता है कि ये दिक्कत है. बट ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन होती है कि बच्चा अजीब ढंग से बिहेव करता है और बच्चों से अलग बिहेव करता है, लेकिन वो देखने में मे बी बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट लाइक हिज हेड बैलेंसिंग, हेड होल्डिंग एंड वॉकिंग ऑल हैज़ हैपेंड एट द राइट टाइम. सो समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर. तो वो सबसे ज़्यादा अवेयर कब होते हैं? जब बच्चा बोलता नहीं है, कि 2 साल हो गए बच्चा बोल नहीं रहा है. सो दे मीट द डॉक्टर, and that is the time, like the doctors need to tell them कि ऐसा हो सकता है, उसकी स्क्रीनिंग करें. The other thing is कि स्क्रीनिंग टूल by definition ही ऐसी चीज़ है कि वो इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी उसको फॉलो कर सके. So there is a lot of sensitization going on now in the form of डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको पोस्टर्स दिखते हैं अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म के, और
बहुत सारे लोग कम्युनिटी में जाते हैं काम करने के लिए, सो कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं उनको सेंसिटाइज करना, टीचर्स को स्कूल में सेंसिटाइज करना, ताकि प्री स्कूल के टीचर्स भी कुछ सिम्टम्स बच्चों के कर सकें, पकड़ सकें. और आई वुड से अ जनरल अवेयरनेस थ्रू मीडिया, थ्रू पेपर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन वेयर चिल्ड्रन दे गो फॉर डे केयर सेंटर्स. जी. एंड इफ एट दैट लेवल वी कैन क्रिएट सम सिम्टम्स, कि बच्चा दूसरों के साथ नहीं खेल रहा है, प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, अगर ये कुछ सटल सिम्टम्स जो है ऑटिज्म के, अगर हम इनकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं विद लाइक व्हाट वी कॉल स्टिक फिगर्स बना के, पिक्चर्स बना के, तो आई थिंक काफ़ी अवेयरनेस इसकी हो सकती है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सकती yes, है. absolutely. जी. So we'll go on to now more about roles of the key players. Role of key players. Service coordinator. This person helps the family coordinate all special services for the child. The service coordinator is responsible for monitoring and actively participating in the process. तो जो सर्विस कोऑर्डिनेटर होता है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का, वो क्या है, एक लिंक है between the parent and all the other professionals who are working in the early intervention program. तो वो monitor करता है इस program को. The next is early interventionist special educator. Early childhood teachers or consultants specialize in helping the child to learn and develop. So the early interventionist, special educator or the psychologist is the professional who is trained to assess the child's current level of behaviors and plan the program for the child in terms of short-term measurable goals. This is something we have talked about earlier also. बहुत जगहों में ये जो they don't have a separate special educator for assessment, and the psychologist is able to assess the child and form small goals which are given to the family. तो जैसे कि आपने पहले बात की थी चेकलिस्ट के, एक चैट जो आपने बताया था टॉडलर्स के लिए और उपनयन, इस तरह के मतलब जो आप बोल रहे हैं कि चेकलिस्ट हम यूज कर सकते, पोर्टाज, तो हम वो बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन टू असेस द चाइल्ड. एब्सोल्युटली. ये एक्चुअली कर तो जो पेरेंट्स थोड़े अवेयर हैं और स्पेशल एजुकेटर्स भी कर सकते हैं, बट इन सम प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और रूल्स फॉलो होते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट इसको करते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू नो व्हाट इज सो कॉल्ड नॉर्मल डेवलपमेंट. क्योंकि तो इससे क्या बच्चे का लेवल ऑफ ऑटिज्म पता चलता है, या बेसिकली इसका रिजल्ट आउटपुट क्या निकलता है? देखिए, लेवल ऑफ ऑटिज्म जो है कि मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है, ये सब जो टर्म्स होती है बड़ी सब्जेक्टिव टर्म्स होती है, और हम बहुत छोटे बच्चों को लेबल्स नहीं देना चाहते ऐसे. हम देखेंगे कि उसको क्या करना था इस एज में और वो क्या कर रहा है. वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, क्या नहीं कर रहा वो उसकी वीकनेसेस हो गई. तो हम वी विल यूज द स्ट्रेंथ्स टू वर्क ऑन द वीकनेसेस, एंड इट इज गोइंग विद द चाइल्ड. सो हम आगे चल के जब डिफरेंट मेथडोलॉजीज की बात करेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होता है. साइकोलॉजिस्ट कई बार इसीलिए प्रेफर्ड होते हैं क्योंकि दे नो डेवलपमेंट ऑफ रेगुलर चिल्ड्रन एंड दे कैन कंपेयर वेरी इजीली. तो इजीली वो रूल आउट हो सकता है कि एक बच्चा जो AST में आता है उसके साथ बेसिकली काम कैसे करना है एक फ्लो में. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. Next is speech language pathologist. A speech and language pathologist helps a child use language. Children with autism benefit from intervention by a speech and language therapist who can provide training, alternative and augmentative communication like sign language, picture exchange systems. Other problems like garbled, inadequate speech, slurred speech, or stammering can also be addressed by a speech therapist. When the child is ready for speech intervention is an important consideration. Like I said earlier, speech therapist plays a very important role because it is a language and communication disorder. So, first of all, we want speech therapists who respect all kinds of methods of communication. If the speech therapist insists only on vocals, that you can't keep on waiting for the child to speak. You have to provide the child with some means of communication, because autism एक ऐसा disorder है कि जिसमें total communication affected होता है.
तो अगर बच्चे के पास शब्द नहीं है तो उसके पास साइंस या एक जो नॉर्मल वे में बच्चा जेस्चर्स यूज करता है वो भी लिमिटेड है. दोनों तरह की कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, दैट इज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो क्या है कि हम इस बच्चे के लिए वेट तो नहीं करेंगे कि जब ये बोलेगा तब हम इसको शब्द सिखाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्पीच थेरेपिस्ट रिस्पेक्ट्स बोथ alternative modes of communication, which means teaching with the help of sign language and also teaching by cards. Cards are like पानी चाहिए है अगर बच्चे को तो he gives the picture of a glass to someone and the person gives him water. If the child wants to have chocolate, then maybe there is a card with the logo of chocolate on it and the child exchanges that for what he wants. So it is very important that all methods are respected and not only speech. बिकॉज कम्युनिकेशन 1000 तरह से करते हैं हम लोग. द अदर थिंग इज, जैसे कि हमने पहले बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि व्हेन इज द चाइल्ड रेडी फॉर स्पीच थेरेपी. विल ही पे इनफ अटेंशन, देन ही इज रेडी फॉर स्पीच. अदरवाइज बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी स्टार्टेड बाय द स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो. द नेक्स्ट वी हैव occupational therapist. This person specializes in fine motor, small muscle skills, oral motor skills and activities of daily living. An occupational therapist might help a child learn to use a spoon or pull pants up. Therefore, the role of an occupational therapist is very important as he or she addresses the needs for training in activities of daily living involving body use. Issues related to difficulties in writing, coloring, copying from blackboard and hyperactivity are also taken care of by the OT. जैसे कि दूसरे conditions में भी होता है, even in autism, the role of an occupational therapist is very important. Because there are many kids with autism, और in fact हमें ये ध्यान में ही रखना चाहिए कि autism एक ऐसी condition है कि जिसमें uneven skills होते हैं. Uneven skills means कि suppose you have a child with intellectual impairment or say mental disability, तो उस केस में क्या होता है कि अगर बच्चे का mental age 5 years है और उसकी अगर real age उसकी जो है actual age अगर 10 years की है, तो वो बच्चा सब कुछ लगभग 4.5, 5.5, 5, 6 साल की एज के करता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एन इवन प्रोफाइल इन ऑल एरियाज. बट ऑटिज्म इज वन डिसऑर्डर इन विच वी हैव लॉट ऑफ अनइवननेस. यू कैन हैव किड्स जिनको अपनी ग्रोस मोटर यानी कि भागने में, दौड़ने में, जिनको अपने हैंड्स से चीज़ों को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दे हैव डिफिकल्टी विद फाइनर मूवमेंट्स, दैट इज fine motors with their fingers, so coloring, buttoning. They may have a lot of unevenness in their skills. So the role of occupational therapist is very important, and we have to respect that it has to be a multidisciplinary intervention. We cannot say that only a special educator can take care of everything, or a speech therapist, or only an OT can take care of everything. It has to be a teamwork, and the role of occupational therapist is very important for kids with ASD. क्योंकि जैसे कि आपने बताया इसमें मल्टीपल स्किल्स में अनइवननेस होती है, तो सारी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चा किस लेवल पे है, कौन से काम कर सकता है, कौन से काम में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वी नीड डिफरेंट प्रोफेशनल्स फॉर दैट. Absolutely. All right. Since children with ASD have difficulties in processing and integrating sensory information, they have difficulties in performing ADLs, copying from board, holding pencil, paying attention to relevant stimuli, and OT having this knowledge can provide sensory integration. तो हम OT के रोल को बहुत emphasize इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि autism में क्या है कि एक particular difficulty होती है जिसे हम कहते हैं sensory dysfunction. Now sensory dysfunction को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, छोटे बच्चों में भी ये होती है. क्या है कि हम अपने हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. हम अपने आसपास की दुनिया जो है उसको कैसे समझते हैं? थ्रू आवर सेंसेस. हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज
कि हमारी कोई भी सेंस अकेले काम नहीं करती, सब एक इंटीग्रेटेड मैनर में करते हैं. हम कुछ देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी है, हम देखते हैं ये सॉफ्ट है, तो देख के हमें मालूम चल जाता है कि ये चीज़ सॉफ्ट है, तो हम उसको बहुत प्यार से उठाते हैं, हल्का सा जेंटल टच दे के उठाते हैं. अगर हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी पड़ी है कि वी नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैवी, सो वी गिव इट अ गुड ग्रिप एंड वी पिक इट अप. सो द वे वी टच थिंग्स डिपेंड्स ऑन आवर विजन. If I hear a horn, a very loud horn, at once, my body changes its position, that I must take care, because if I'm walking on the road, हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं और अचानक जोर की आवाज़ आती है, तो हमारी पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है कि थोड़ा संभाल के एक साइड पे हमें चलना है. So what happens is कि all our senses, they work together, they give support to each other. In autism, this support may be altered. तो ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन की आपने बात करी, और स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कशन अर्ली इंटरवेंशन के बारे में स्टार्ट किया था, तो आपने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि सेंसेस के साथ प्रॉब्लम होती है ऑटिस्टिक बच्चों को. बिल्कुल, सेंसेस में कमी नहीं है जी, बट उनकी प्रोसेसिंग में कमी है. ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, अंडर सेंसिटिव हो सकते तो ये जो हमारी जैसी मेन 5 सेंसेस होती हैं जिससे हम स्टिमुलस लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये सारी सेंसेस में बच्चे की प्रॉब्लम होती है या किसी एक या 2 सेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है? हैं. जरूरी नहीं कि सारी सेंसेस में होंगी. कुछ बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स साउंड, तो कुछ अति संवेदनशीलता बोलते हैं जिसे हम, वो होगी आवाज़ों के लिए. सो इवन एवरीडे साउंड्स जो कि हम हमारे लिए इतने मायना नहीं रखते हैं, जैसे कि फर्नीचर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्रीचिंग आवाज़ आती है, तो उससे इनके कानों में पेन हो सकता है. कोई रो रहा है, 3-4 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, मार्केट में गए हैं, मार्केट में गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, लोगों की आवाज़ भी आ रही है, बहुत कुछ मूव कर रहा है उनके आसपास, चीज़ें दिख रही हैं इतनी, तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम ऑफ सेंसेस हो जाता है उनको. तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को सारी ही सेंसरी इश्यूज होंगे या डिफ़िकल्टीज होंगी. कुछ को किसी एक एरिया में होगा, कुछ को किसी दूसरे में होगा. कई लोगों को टच से होता है, सर्दियों में बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं, गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको चुभते हैं गर्म कपड़े, तो उनको फिर टैक्टाइल इश्यूज हैं. तो इस तरीके से अलग अलग है, और ये सेंसरी डिफ़िकल्टीज आती जाती भी रहती हैं, लेकिन इन्हें एड्रेस ज़रूर करना पड़ता है. थ्रू सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हम इनको एड्रेस करते हैं. बेसिकली ये जो सेंसरी डिसफंक्शनिंग की आपने बात करी थी, सेंसरी डिसफंक्शनिंग में जैसे कि आपने बताया कि सेंसेस के साथ रिस्पॉन्सेज में प्रॉब्लम होते हैं, तो इसकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमने एक सामने एक सिचुएशन दिया, जी, मे बी बच्चा उसमें रिएक्ट ना करे स्टिमुलस के लिए, तो इसके लिए क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए या कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास बहुत ही पेरेंट फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली, बहुत सिंपल चेकलिस्ट्स होती हैं, और वो सिर्फ येस नो में आंसर देने होते हैं. सिंपल लिखा होता है कि क्या आपके बच्चे को, डज योर चाइल्ड प्रेफर टू वेयर सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स, डज योर चाइल्ड एवर ट्राई टू स्मेल थिंग्स विच ही इज नॉट सपोज टू स्मेल, लाइक नया टॉय आया है तो उसको स्मेल करेगा, खाना दिया तो उसको स्मेल करेगा. तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, बच्चे के बिहेवियर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सभी बच्चे फॉर एग्जांपल नेल कटिंग से डरते हैं, बट सपोज ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा डरता है और बहुत ही बिहेवियर शो करता है, रोता है, चिल्लाता है, दूसरों को मारता है अगर उसको नेल्स काटने हैं, या अगर उसको बाथ के लिए लेके जा रहे हैं और उसके हेड में अगर हाथ लगा रहे हैं, उसको शैम्पू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहता कि कोई उसके सर पे हाथ लगाए. वो खुद पानी में घुसा रहेगा सारा दिन, वो सारा दिन पानी में नहाना चाहता है, बट व्हेन somebody else touches his head he screams. So there are behaviors which are indicators of sensory issues, and there are sensory profile checklists which are very simple and they can be checked by the OT, by the parents, by the school teachers also. जी, तो ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. एक प्रोफेशनल जो मेनली हम फोकस कर रहे हैं ओटी के ऊपर, क्योंकि फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स जो होती हैं, जैसे कि आपने बताया पहले डिस्कशन में, और सेंसरी डिसफंक्शनिंग है, उसकी प्रॉपरली असेसमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरवेंशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है. जी, तो ओटी के रोल को हम लोग ओवर एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं, वो रोल इम्पोर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़. सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. तो हमें लेट्स सी व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन, बिकॉज
in the early intervention, sensory integration therapy is a part. It's a part of the early intervention. Sensory integration. Sensory integration refers to the integration and interpretation of sensory stimulation from the environment by the brain. The focus on three senses: tactile, vestibular, proprioceptive. तो हमने अभी तक जो बात की थी अपनी 5 सेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, और अभी अचानक हमने 2 वर्ड्स और लिख दिए, दिखा दिए यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट इट मीन्स. पहली चीज तो सेंसरी इंटीग्रेशन मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, इट इज प्रोसेस्ड बाय आवर ब्रेन correctly, it is understood by our brain correctly, and the brain sends the right kind of signals to the body to give a response. लेकिन हमने जब बात की कि 3 फोकस एरियाज की सेंसेस की, तो हमने बोला टैक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्राइसेप्टिव. हमारा बेसिस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन या सेंसरी नर्वस सिस्टम इन 3 सेंसेस के साथ होता है. टच इज टैक्टाइल, वेस्टिबुलर इज बॉडी बैलेंस एंड मूवमेंट, and proprioceptive is knowing our own body. मेरा हाथ यहाँ है, मेरा हेड यहाँ पे है, and you know only when I know my body I can hold something well. जैसे कि I can आपने manipulate मेन things. फोकस किया है सेंसरी इंटीग्रेशन में 3 बातों पे, टेक्टाइल, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्राइसेप्टिव. और आप इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि मतलब बेसिकली पहले हमने 5 सेंसेस की बात की है, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टू द 3 पॉइंट्स ओनली. तो इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे.
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं अभी सेंसरी डिसफंक्शनिंग की और उसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, और उसमें हमने बात करी थी कि रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बेसिकली हमारे एक्सपर्ट ने फोकस किया टेक्टाइल पे, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्राइसेप्टिव। इसके रिगार्ड में हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। हमारे व्यूअर्स उनको ध्यान से देखें और उनके जो भी क्वेरीज हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए हम वीडियोस देखते हैं और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। ये जैसे कि हम वीडियोस देखेंगे जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में बताया होगा, तो आइए देखते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम कर रहा था और इसमें बच्चे को हेड मसाज एंड हैंड मूवमेंट्स के लिए आई थिंक मसाज दिया जा रहा ये था। जो बच्चा है ये जो काफ़ी जब खड़ा होता था तो अपना हेड शेक करता था, उसको हिलने की ज़रूरत महसूस होती थी, ऐसे ऐसे हिलता रहता था, तो उसको वेस्टिबुलर बॉडी बैलेंस एंड मूवमेंट की ज़रूरत थी और इसीलिए उसके हेड पे प्रेशर्स भी दिए जा रहे थे। और साथ में हम एक से ज़्यादा सेंसिटिव मोडालिटी पे काम करते, तो जो उसको टब में दिया था दैट वाज सिंपल गेहूँ, व्हीट ग्रेन्स थी वो, और उसको वो उसका टेक्सचर वो टच कर रहा था। एंड इस बच्चे को हेड प्रेशर पसंद था, बट उसको कितना था वो अपने आप इंडिकेट कर रहा था कि कुछ देर के लिए वो प्रेशर लेता था और उसके बाद में एकदम वो पीछे देख के अब बोलता था हटा दो, बिकॉज वो चाइल्ड बहुत ही एक ओवर स्टिमुलेटेड चाइल्ड था। और अब हम एक और आपको दिखाएंगे जिसमें हम जो विजुअल दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, उसमें एक बच्चे को थेरेपी बॉल पे एक्सरसाइज दे रहे हैं। थेरेपी बॉल जैसे बहुत लोग जानते होंगे, इट्स ऑल्सो नोन एज अ जिम बॉल और एक्सरसाइजिंग बॉल. The child is made to sit on the ball in different ways, you know. Here the child is sitting on the ball and the occupational therapist is just giving him support and moving the body in linear movements up and down. And after we see it, we will discuss why it is being done with the child. जी, इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि थेरेपी बॉल से एक्सरसाइज कैसे करवा सकते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. ये वीडियो हमने देखा और इसमें देखा कि बच्चे के साथ थेरेपी बॉल यूज करके किस तरह से इंटीग्रेशन दिया जाता है. जी, और जैसे ये बच्चा है, इसकी एक जैसे कि ऑटिज्म का वन ऑफ द सिम्टम्स इज रेपिटेटिव मोटर मैनरिज्म्स. तो ये बच्चा अपने हाथों को बहुत ऐसे कर करके हिलाता था और इसको हैंड्स पे प्रेशर की ज़रूरत थी. जैसे हम लोग अपने हाथ हिलाते हैं, व्हेन आवर हैंड्स दे गो नाउ इन द सेंस जब सो जाते हैं हाथ, तो हम भी कुछ अंडर स्टिमुलेटेड हैंड्स को मूवमेंट देना चाहते हैं. तो बिल्कुल उस तरीके से इस बच्चे के हाथ अंडर स्टिमुलेटेड होते हैं
तो ये ऐसे करने लगता है, और इसीलिए थेरेपी के टाइम पे उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, पुट योर हैंड्स अंडर योर थाइज, ताकि उसको अपने आप सीख रहा है बच्चा कि अगर मेरे हाथों में अंडर स्टिमुलेशन है, सो आई कैन गिव देम सम काइंड ऑफ अ डीप प्रेशर बाय पुटिंग माई हैंड्स अंडर माई थाइज. So the child is also learning to cope with his sensory issue on his own. So when he is feeling restless with his hands, wherever he is, he can just put his hands under his thighs and give them pressure by sitting on it. We will see one more, which is jumping. Inside and outside. Should we walk a bit? Should we walk around? Walk around. Let's walking. Okay. ये जो वीडियो थी इसमें आपने दिखाया कि किस तरह से बच्चे को राउंड एंड राउंड मूवमेंट, और जो स्पेशल एजुकेटर था, जो भी इसके साथ एक्सपर्ट था, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे आउटसाइड एंड इनसाइड. बिकॉज जब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हम कर रहे होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन द ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल एंड ऑल द सेंसेस आर गेटिंग इंटीग्रेटेड. So it is recommended that when this therapy is being given, give instructions to the child. So you saw that this little boy, he was following the instructions very well. जब वो in बोल रही थी, she's working on language. हालांकि वो एक occupational therapist है. She's working on sensory integration therapy. But she knows that the child has difficulty with language. So when she knows that processing and integration of his senses is happening, तो वो उसको instruction following देती है, और वो कर भी रहा था. जैसे स्विंग होता है, झूले पे बैठना, तो हम बच्चों को झूले पे बिठाते हैं और हम सिंपल चीजें करते हैं कि झूला जैसे सामने आता है, हम बोलते हैं 1, पीछे जाता है 2. तो अगर बच्चा बोल सकता है तो वो बहुत अच्छी तरह उस टाइम 1, 2, 3 बोलता है, क्योंकि उसकी ब्रेन ऑर्गेनाइज हो रही है, उसकी अटेंशन बढ़ रही है और वो रिस्पॉन्सेज देगा. जो बोल नहीं सकते उनके साथ हम छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करते हैं कि झूला अगर सामने को आ रहा है तो कोई सामने खड़ा होकर बोलता है गिव मी हाई फाइव, तो उसके साथ क्लैप करता है झूले पे. तो हमें जब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हम देते हैं उस समय कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे के साथ थोड़ा इंटरैक्ट करें. बहुत से बच्चे हैं जिनको वेट पसंद है, तो उनको वेटेड ब्लैंकेट्स में डालते हैं, उनके ऊपर वेट, पूरी बॉडी पे वेट थोड़ा होता है ब्लैंकेट्स का, और उस टाइम जब वो लेटता है बच्चा और बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं उसकी सेंसेस, तो उस टाइम जो भी एजुकेटर या उसके साथ होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन आई कॉन्टैक्ट. तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट बनाता है. सो दिस थेरेपी इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट वर्क्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट वर्क्स ऑन अटेंशन, और बच्चे की अटेंशन अगर होगी तो वो सब कुछ बेहतर सीख पाएगा. ये जैसे कि वीडियोस में दिखाया कि अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं सेंसरी डिसफंक्शनिंग में और इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की काफ़ी सारी एबिलिटीज़. तो मैम जैसे ये पर्टिकुलर कुछ सिचुएशंस थी और हमारा बेसिकली मोटिव होता है, गोल होता है कि जनरलाइज्ड में वर्कआउट करना, ताकि बच्चा हर सिचुएशन में अच्छे से रिएक्ट कर सके, अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके. तो जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें वो एक एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो हम कैसे उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लाएंगे? देखिए, एट होम ऑल्सो दिस थेरेपी कैन बी गिवन. जैसे हमने पहले ही बोला था, ये जंप कर रहा था गोल गोल. सो अ सिंपल थिंग लाइक अ टायर, बिकॉज दिस वॉज एन इलेबोरेट इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं लाइक सेंसरी आइलैंड और अ जंपिंग आइलैंड, वो यूज़ हुआ था. तो ऑब्वियसली फैमिलीज ना इतना अफोर्ड करेंगे, ना इतना जगह होती है इन सब चीज़ों को करने की. तो व्हाट कैन बी डन इज कि एक नॉर्मल टायर जो होता है, पुराना टायर जो मिलते हैं मार्केट में, वो टायर घर में लाया जा सकता है, या टायर की ट्यूब, जो टायर के अंदर की ट्यूब होती है, fill air in that, get air filled in that, and something like jumping can be done around that. The other thing is that if we are, the main idea is the child is balancing body. So simple things we can do is कि अगर हम एक कुशन है और या 2-3 तकिए या कुछ मैट्रेस ले लिया, मैट्रेस को 2-3 फोल्ड्स कर दिए. So simply, we just get the child to jump in, on and out of the blanket.
of the mattress or around the mattress. So he works on his body balance. Sometimes we do simple activities like giving the child a very big ball. इस साइज का अगर हल्का बॉल जो मार्केट में मिलता है आम वो वेरी चीप बॉल्स वी गेट एंड यू नो द चाइल्ड इट्स इजियर फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू जस्ट कैच इट बिकॉज इट इज वेरी बिग. So first we get the child to sit on a stool and then catch the ball. Then we may ask the child to stand on the stool, balance body and catch the ball. So there are several ways कि हम एक bricks की line लगा दें और एक हाथ बच्चे का पकड़ें और bricks पे उसको चलाएं. That also works on body balance. जो textures हमने देखा कि like the child was touching things. A very very simple thing which can be prepared at home is a texture mat, which means any old cloth, any old, it could be like it could be a carpet, it could be a dari, it could, जो फैमिली बिल्कुल इन चीज़ों को भी नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए हम उन्हें बोल सकते हैं कि अगर और कुछ नहीं तो आप एक जूट बैग, दैट इज अ बोरी, वो ले सकते हैं और उसमें 2-2 इंच पे अलग अलग टेक्सचर्स सी दीजिए. कॉटन, ब्लैंकेट, लाइक इट कुड बी लाइक यूटेंसिल साफ करने वाला स्क्रब जो होता है, स्कॉच ब्राइट, bubble wrap, different kinds of textures on that, and let the child feel those textures. So the child gets desensitized and the child learns to use different textures. We have seen so many children जो हर समय कि चीज़ों को स्मेल करते रहते हैं. खाने के दीजिए, टॉयज दीजिए, क्लोथ्स दीजिए, even sometimes they go very close to people and they start smelling them. We do the same thing, not that we smell people, but we have the same kind of feeling when we have a nose block or a cold. We want to smell more. So there are kids, imagine for them this is life. They have understimulated nose and it's very difficult for them. So they want to smell more and get some sensation. So what a simple thing is done, we give them very small containers with some cotton wool. In some we put perfume, in some we put very pungent smell like garlic. It could be hing, it could be something like Dettol, and that's a smell box. So once or twice in the day the child is given his smell box to smell and the child gets out of this kind of understimulation and comes to a normal stimulation. So there are lots and lots of what we can call, जैसे हम बोलते हैं home remedies. It's not कि elaborate equipment से ही होगी, but अगर assessment एक ज़रूरी थोड़ी सी होती है कि क्या है बच्चे की need. Because let's see, there are 2 things. अगर बच्चा over sensitive है किसी चीज़ से, अति है किसी चीज़ की, तो हमें उसको क्या करना है, काम करना है, उसको रिलैक्स करवाना है. अगर बच्चे में अंडर स्टिमुलेशन है, लाइक आई सेड नोज में अंडर स्टिमुलेशन है, वांट्स टू स्मेल मोर, तो हमने उसको अलर्ट करना है. हम उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल्स दे रहे हैं तो अलर्ट करना है या काम करना है. समटाइम्स इसकी एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो इट कैन बी बैड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो. जी, तो जैसे कि इस चीज़ को अच्छे से वर्कआउट करने के लिए, जनरलाइजेशन में लाने के लिए होम रेमेडीज भी जैसे आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है, विद द काउंसलिंग एंड विद द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट. एन एक्सपर्ट वही अच्छा एक्सपर्ट होगा जो फैमिलीज को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में ऐसी चीजें बताएगा जो घर में अवेलेबल हैं, रादर देन सेइंग कि एक सर्जिकल ब्रश खरीदो और उससे बच्चे को अगर टैक्टाइल प्रॉब्लम्स है तो मसाज दीजिए. इट्स बेस्ट टू से कि ट्राई स्कॉच ब्राइट, ट्राई बर्तन धोने वाला ब्रश, ट्राई अदर थिंग्स लाइक सॉफ्ट टूथ ब्रश, कोट साफ करने वाला जो कपड़ों का ब्रश होता है. तो दे विल गिव लॉट्स ऑफ एडवाइस. सूखी तोरई, loofah it's known as. So there are lots and lots of things that the occupational therapist can guide the family on. So we'll see some more visuals now. ये जैसे कि आपने सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में बताया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स वीडियोस के थ्रू हमारे एक्सपर्ट ने व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए हम बच्चों के लिए काम कर सकते हैं with the different techniques that are used in the center and with the guidance of expert. मतलब कि expert की guidance से हम घर में भी उसको workout कर सकते हैं. All right, this is another thing. This is known as a ball pool. Now there are some children with autism who like to sit in enclosed space. Gives the child an enclosed space to sit in, feel secure and also textured input. इसको बॉल पूल कहते हैं और ये एक सेंसरी इक्विपमेंट है जो मार्केट में मिलती है.
ना जैसे हमने होम रेमेडीज की बात की, तो अगर बॉल पूल नहीं है घर में उसको, लेकिन बच्चे को एनक्लोज्ड स्पेस में बैठना पसंद है, तो हम लोग बहुत बार पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जो खाली डिब्बे होते हैं कार्टन्स कार्डबोर्ड के, यू यूज दोस कार्टन्स, पुट लॉट्स ऑफ cushions and lot of pillows in that, and lot of textures in that, different toys and all, and let the child sit there and play with them. So we can prepare our own pool at home, which is in the form of a cardboard box with some textures, with some cushions, which will make the child feel very secure. Another one, this is a child sitting in a ball pool and he's enjoying himself. Wheelbarrow walking provides input at the joints, weight bearing areas, also gives a good body sense and control. इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है इस पिक्चर में, वो एक व्हील बैरो वॉकिंग कर रहा है, पीछे से उसके लेग्स उठाए एंड ही वॉक्स ऑन हिज हैंड्स. सो व्हेन ही वॉक्स ऑन हिज हैंड्स, इसके जो जॉइंट्स हैं रिस्ट पे, उन पे प्रेशर पड़ता है, वेट बेयर होता है, एंड दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज लीड टू गुड फाइन मोटर एक्टिविटीज. नाउ हम लोग जानते हैं कि लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट जॉइंट कंप्रेशन देते हैं. जॉइंट कंप्रेशन इस तरीके से होती है कि वो कुछ अपने टेक्निक से एक्सटेंड कर ये यहाँ पे मतलब खींचना हाथ और वापस करना एट द जॉइंट्स, ये एक्सरसाइजेस देते हैं इस तरीके से. आई एम नॉट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई मे नॉट बी डूइंग इट इन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल मैनर, बट दिस इज द काइंड, एंड यहाँ पे सपोर्ट करके फिर यहाँ पे उनको देते हैं. ये ना, अगर आप देखिए ये जो हमने अभी स्लाइड देखी थी कि जिसमें वो बच्चा अपने हैंड्स पे था, इट वाज द सेम काइंड ऑफ अ थिंग कि उसके जो रिस्ट थी उस पर उसकी बेयरिंग हो रही थी और वो मजबूत हो रही थी, और उसकी जो नर्व्स वगैरह फिंगर टिप्स की हैं और वो बेटर वर्क करेंगे. राइटिंग, कलरिंग, बीडिंग, इन सब चीज़ों में ऐसी एक्टिविटीज़ उसको हेल्प करेंगी. तो इस तरह से बच्चे का जॉइंट कंट्रोल इम्प्रूव होता है. विसे जॉइंट्स पे मूवमेंट्स होना, मोटर प्लानिंग भी विल से, तो मोटर जैसे कि आपने इसमें बताया था कि वेट बियरिंग एरियाज पे, जॉइंट्स पे मतलब इनपुट देना बहुत जरूरी है. तो आपने जैसे करके बताया कि जो मेनली जॉइंट्स होते हैं उन पे फंक्शन किया जाए, उसको प्रोप्राइसेप्टिव जो हमने पहले बोला था एरिया, वो प्रोप्राइसेप्टिव एरियाज होते हैं, तो उस पे एक्सरसाइज देना ताकि वो अपनी बॉडी को बेटर प्लान कर सके एक्टिविटीज करने के लिए. जी. Okay. This is an SIT room, sensory integration therapy room. What all do we see here? Rope ladder. There is a gym ball, a yellow gym ball. Eye-hand coordination activities, textures, trampoline, balance board, dress boards. So these are some of the things that we have in the SIT room. और घर में इन सब चीज़ों को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में तो प्रोवाइड किया ही जा सकता है कि अगर रोप लैडर नहीं है तो बच्चे को हम स्टेप्स चढ़ाना सिखाएं, या हम बच्चे को क्लाइंबिंग सिखा सकते हैं. हाउ कैन वी टीच द चाइल्ड टू क्लाइंब? वी पुट अ स्टूल, देन अ चेयर एंड देन अ टेबल, एंड वी कीप अ रीइंफोर्सर ऑन द टेबल. सो टेबल के ऊपर एक छोटा सा पीस चॉकलेट का है, एंड द चाइल्ड फर्स्ट हैज टू क्लाइंब द स्टूल, देन द चेयर एंड देन द table and get his reinforcer. So we can add a lot of games for the child. Textures में if we add some sand in a paint, हम कुछ वाटर कलर्स ले लें और उसमें थोड़ी सैंड डाल दें और फिर बच्चे को बोलें अपने फिंगर से पेंटिंग करो, तो उसको टेक्सचर भी लगेगा. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग घर में इजीली बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है. आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन एट होम विद द चाइल्ड. हम बहुत एक हमारी एक्टिविटी एक है कि जिसमें हम बच्चों को बहुत इंटरेस्ट देखते हैं, उनको आता है. जो क्लोथ पेग्स होते हैं, कपड़े सुखाने वाली जो पेग्स होते हैं या चिमटियाँ होती हैं, वी जस्ट पुट देम अराउंड अ कंटेनर, फिक्स कर देते हैं. वी टीच अ चाइल्ड टू डू दिस मूवमेंट, रिमूव इट, कलेक्ट इट इन द कंटेनर. सो वी हैव अ कंटेनर जिसके रिम पे ये कपड़े सुखाने वाली पूरी चिमटियाँ होती हैं और बच्चे को पूरा फाइन मोटर से उसको खींच के रखना है. जब वो कर लेता है निकालना तो उसको लगाना भी सिखाते हैं. तो इस तरीके की बहुत एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चे के लिए खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड लाइक आई सेड कि पेरेंट्स को प्रोग्राम मिलता है, दे कैन ईजिली एग्जीक्यूट दिस एट होम, बिकॉज I would say the main
motive or the main intention of the occupational therapist should be that the child improves in all bodily areas, but in a cost effective manner. We can't ask a family to buy such elaborate equipments for a very small child because he'll outgrow them very fast. तो घर में जो मटेरियल अवेलेबल है या जी। इजीली हम कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, पेरेंट्स को ना अलग से बाय करना पड़े, एक्सपेंसिव ना हो, उसके लिए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आइडियली घर पे बता सकता है कि कैसे रेमेडीज हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ रेमेडी पार्ट. बिल्कुल, लाइक इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. आई हैव सीन वन मदर जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कर रही थी और उन्होंने अपने आप ये एक्टिविटी क्रिएट करी थी अपने बच्चे के लिए कि जो कुशन्स मिलते हैं मार्केट में और उनके कवर्स में जिप लगी होती है, तो उन्होंने उस कुशन की जिप खोलना बच्चे को पहले सिखाया था और फिर वो कुशन उसकी कमर में बांध दी थी क्योंकि वो कुशन फ्लफी थी, उसके अंदर पॉलीफिल भरा हुआ था और वो बच्चे के सामने कुशन थी और वो वहां पे अपनी जिप अप डाउन करना कुशन की सीखा, फिर अपनी जिप अप डाउन करना सीखा. तो इट वाज लाइक शी वाज इन अ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम एंड शी लर्नड हर ओन वेज. द सेम मदर, उसका उनके बच्चे सब कुछ, बच्चा जो था मूड में चीज़ें डालता था और वो हमेशा डर के रहती थी. एवरीथिंग गोज इनटू द माउथ, माउथिंग था. तो जब बीडिंग कर रहे थे बाकी बच्चे, तो इस मदर ने अपने बच्चे के लिए मार्केट में वो फ्राइम्स मिलते हैं जिनमें होल्स होती है और उनको फ्राई करके खाते हैं. शी हैड गॉट दोज एंड द चाइल्ड यूज्ड टू पुट the thread through the frames, and even if he put it in the mouth, it was not harmful for him. So once you train the parents, because early intervention is all about training the families, they can become very creative and they can give ideas to special educators and OTs themselves also. सो इट वाज लाइक कि घर के ही आइडियाज यूज करके बिल्कुल। और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अच्छे से उसको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, तभी ये प्रोग्राम चल पाएगा. हर रोज आप बच्चे को एक ही काम कराते रहेंगे, वो बोर हो जाएगा. तो एक तरीके की वैरायटी लाने के लिए वी कैन यूज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम होम फॉर द चाइल्ड. जी. विजुअल सपोर्ट्स इन एन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम. अभी हमने सेंसरी फिनिश कर दिया है, हम अब कर रहे हैं विजुअल सपोर्ट्स. So children with ASD are visual learners. Therefore, use of visual cues can help them a lot. Visual cues are concrete, predictable, stay in front of the child, make communication easier to understand. तो ये visuals अगर हम देखें, अगर हम ये विजुअल्स यूज करते हैं बच्चे के साथ कोई भी चीज कम्युनिकेट करते समय, तो हम बच्चे को बोलते हैं एक पिक्चर कार्ड दिखा के या एक्चुअल में कीज दिखा के कि चलो अभी हम बाहर जा रहे हैं. तो बच्चे ने बाइक में अपने फादर के साथ जाना है, उसको लैंग्वेज इतना अभी नहीं आता, बट द मोमेंट वो कीज दिखाएंगे बच्चे को और बोलेंगे बाइक में जाएंगे, तो बच्चा बाइक में जाएंगे एकदम उस लैंग्वेज का मतलब बेहतर समझेगा. एक टिपिकल जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम ASD के लिए बनाते हैं, उसमें हम लोग बच्चे को छोटे छोटे क्यूज देते हैं. ग्रुप में 15 से 16 बच्चे भी अगर हों अर्ली इंटरवेंशन मदर्स के साथ, तो हम उन सब के साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं. और एक एग्जांपल उसका आपको देंगे कि ये बच्चे थे राउंड अबाउट 15 चिल्ड्रन इन अ मदर चाइल्ड प्रोग्राम, और इनको हम विजुअल क्यूज, इमेजिन सम वर 2.5, सम वर 3, सम वर 4, 5. सो लैंग्वेज अभी वो सीख ही रहे थे, ऑटिज्म था. सो एवरी टाइम जब उन बच्चों को हम आउटडोर्स के लिए लेके जाते थे गेम के लिए, तो उनको एक बॉल दिखाया जाता था. तो बॉल सिंबल हो गया था बाहर जाने का. हर बार जब बच्चा बाहर जाता था वो बॉल से नहीं खेलता था, लेकिन हम ये नहीं बोलते थे कि ये देखो बॉल, हम बाहर जाएंगे. हम बच्चों को बॉल दिखाते थे और बोलते थे वी विल गो आउट, हम बाहर जाके खेलेंगे, हम बाहर जाके खेलेंगे. तो बाहर जाके खेलेंगे का सिंबल उनके लिए क्या हो गया था? बॉल. जब खाने का टाइम होता था, टिफिन टाइम होता था, तो सब मदर्स एक स्पून दिखाते थे प्लास्टिक का बच्चे को और बोलते थे सब खाना खाएंगे अब, और इमीडिएटली बच्चा उस लैंग्वेज को समझ जाता था कि ये खाना खाने की बात कर रहे हैं, हम खाना खाएंगे. कम से कम शब्दों में, मिनिमम वर्बल इनपुट, टू द पॉइंट communication with the help of visuals helps them understand language. So visuals are very, very important because children with autism are visual learners. They are not very good auditory learners.
When you combine auditory and visual, that's multisensory, then So better learning they is learn there. better. They learn the language better. They know what it means. जी, then. तो क्योंकि कम्युनिकेशन हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको वो कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर सकता है अगर हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको समझाएं. बिल्कुल, that's it. तो ये जैसे विजुअल क्लूज के आपने बारे में बताया जी. कि अगर एक होम रेमेडी भी हम यूज कर रहे हैं या एक्सपर्ट भी है वो इंटरवेंशन प्लान कर रहा है तो विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस हम कॉम्बिनेशन में यूज करें तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स अच्छे होंगे. बिल्कुल. ऑटिज्म में क्या है कि देयर डिफिकल्टीज मैनिफेस्ट एज बिहेवियरल इश्यूज एंड वी हैव वर्कड ऑन वेरी वेरी सिंपल विजुअल्स. Like if the family lives in a city, they eat on a dining table, always a placemat when having food. Take the same placemat to a restaurant, they will sit and eat. अगर वो नीचे बैठ के खाते हैं तो आप कोई दरी का पीस रखिए और उसको जानता है कि मैं अगर मामा के घर में हूँ, नानी के घर में हूँ, चाचा के घर में हूँ, बट यही एक पीस जब रखती है मम्मी फ्लोर पे, इट मीन्स मुझे उस समय मेरे लिए खाना आ रहा है. विजुअल क्यूज उनको कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करते हैं. जी. Play. Sensory motor play may stay for more than expected age limits in autism. They play with non-toys versus toys, lack of symbolic or make-believe play, repetitive play with parts of objects and toys. मैम जैसे कि हमने बात करी थी स्टिमुलस के बारे में, विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलस, और हमने देखा कि किस तरह से एक्सपर्ट के साथ, पेरेंट्स की इनोवेशन टेक्निक्स के साथ रेमेडीज जो हम कॉस्ट इफेक्टिव हों, घर में मटेरियल जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके साथ यूज़ करके हम बच्चों के लिए टेक्निक्स बना सकते हैं और नए नए आइडियाज़ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए, एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चे के लिए. ये हमारे एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं. बाकी की टेक्निक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं. क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा
संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। हम बात कर रहे थे प्ले के बारे में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि प्ले के थ्रू हम बच्चे को कैसे कैसे सिखा सकते हैं। यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में और उनके अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। होम बेस्ड है, सेंट्रल बेस्ड है, विद द गाइडेंस ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो आइए हम जानते हैं कि प्ले के थ्रू हम कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं ज़्यादा और बच्चों को सिखा सकते हैं। प्ले जो है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी का एरिया है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि प्रिटेंड प्ले बहुत कम होता है, एंड द अदर थिंग इज दैट सोशली दे आर नॉट वेरी एक्टिव, लाइक दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट सोशल playing with other children of their age. And again, when there is any limitation in language, it becomes difficult to play with children because play का एक base language भी होता है। तो let's see what are the kind of play behaviors in autism. Sensory motor play may stay for more than expected age limits. Play with non-toys versus toys. Lack of symbolic or make-believe play. Repetitive play. And the play with parts of objects. So how do we work on it? Teaching to play. Imitation, cause and effect play, relational play, learning pretense on the tabletop, modeling by the teacher or parent, setting stage, involving the child, role of music and drama. So ये जो visuals हैं, इनसे हमें मालूम चलता है कि जो cause and effect toys होते हैं, autistic children will play for a very long time with those toys because they are sensory by nature. Even a typically developing child, so-called normal child, कि first few years of life या first year of life mostly sensory motor play होता है कि वो चीज़ों को हाथ लगाता है, पैर मारता है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, तो senses के लिए वो play करता है। and it's by the beginning of the second year कि थोड़ा सा प्रिटेंड प्ले डेवलप होता है। तो ये प्रिटेंड हमें प्रिटेंड सिखाना पड़ेगा जिन बच्चों को ऑटिज्म है, एंड द इजीएस्ट वे टू टीच देम प्रिटेंस इज बाय इमिटेशन। सो इफ आई हैव अ स्पून एंड आई हैव अ टेडी बेयर एंड आई एम
फीडिंग द टेडी बेयर विद द स्पून एंड आई आस्क द चाइल्ड कि आप भी ऐसे करो, और वो सिंपल इमिटेशन के साथ सेम करेगा और हम उसको प्रेज करेंगे, ओ टेडी बेयर को भूख लगा, आपने खाना खिलाया. सो इट्स बाय इमिटेशन. कई बार इमिटेशन एट अ बिल्कुल बेसिक लेवल सिखाना पड़ता है, विच मीन्स कि यू हैव टू टीच द चाइल्ड टू क्लैप हैंड्स, बिकॉज अगर वो बर्थडे पार्टी प्रिटेंड करेंगे तो क्लैप करना होगा. बाय बाय करना है अगर प्रिटेंड प्ले में, तो उनको बाय बाय ही नहीं आता. तो पहले हमें इमिटेशन के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ इन चीज़ों पे काम करना होगा और स्लोली स्लोली हम पहुंचेंगे प्ले पे. जब हम प्रिटेंड प्ले सिखाते हैं बच्चों को तो कई बार बहुत अच्छा होता है कि हम बच्चे के इंटरेस्ट के साथ जाएं. सपोज बच्चे को कार्स बहुत पसंद है, तो हम एक कोई भी पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं और पेंसिल बॉक्स को वी कैन मेक द पेंसिल बॉक्स स्टैंड एंड वी हैव अ कार एंड से ओ कार इज गोइंग टू पेट्रोल पंप एंड देन वी हैव अ स्मॉल पाइप और हम कनेक्ट कर देंगे अगर बच्चे को एक्सपोजर है पेट्रोल पंप का. और वी कैन गिव द चाइल्ड अ वेरी स्मॉल बैग एंड अ बास्केट ऑफ tomatoes or any vegetable. चलो हम मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदेंगे and the दादी can become the shopkeeper. रियल लाइफ सिचुएशन से हम बच्चे के लिए एक स्टेज सेट कर सकते हैं और फिर बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. एक्चुअल जो एक प्ले होता है कि जो उसने दूसरे बच्चों के साथ स्पॉन्टेनियसली खेलना है, उसको भी हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके सिखा सकते हैं. सोशल स्टेजेस इन प्ले: solitary play, parallel play, shared play, cooperative play, interactive play and turn taking. Solitary play बहुत autistic बच्चे अपने आप ही करते हैं. Solitary play means playing alone because most of them like to be alone. What I would do is observe the child. When he is solitary, what play is he involved with? Suppose the child just likes to play with cars and he just rotates the wheels of the cars. So what I will do is I will have the child in the next stage sit with another child who all has a truck and this child has a car, but they have their own car and their own truck or whatever and they are playing with their own things. पहली चीज़ हमें सिखानी है बच्चे को कि उसकी प्रॉक्सिमिटी में, यानी कि उसकी नज़दीकी में एक दूसरा बच्चा खेल रहा है और उसको टॉलरेट करना है, कि उसको अपनी चीज़ों से खेलने देना है. इफ़ द चाइल्ड विद ऑटिज्म ट्राइज टू ग्रैब, अगर वो चाहेगा ना कि मैं दूसरे की चीज़ खींच लूँ, तो उसको क्लियर रूल्स दिए जाते हैं. दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल रोहन एंड Anu are playing and Anu has autism and she's pulling Rohan's car. So we will say ये रोहन की है, ये आपकी है. Clear rules देने हैं उनको. And this is how पैरेलल प्ले होगा कि दो जन खेल रहे हैं लेकिन अपना अपना खेल खेल रहे हैं. In my next stage I will have maybe a basket with 4 or 5 cars. So they are taking out of the same basket. वो क्या कर रहे हैं, सेम बास्केट में से निकाल रहे हैं और वो शेयर्ड प्ले कर रहे हैं इन द सेंस कि दे आर शेयरिंग द सेम बास्केट बट ईच वन ऑफ देम इज टेकिंग आउट हिज और हर ओन कार और गाड़ी और वॉट एवर इट इज, ब्लॉक्स, वॉट एवर इट इज. द नेक्स्ट स्टेज कम्स द इंटरैक्टिव प्ले और द कोऑपरेटिव प्ले, जहाँ पे वो आपस में मिल के खेलेंगे एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई मे हैव ओनली वन कार and I will sit with Anu and I will say, let's send the car to Rohan and we push it to Rohan. And from there, somebody says, Rohan, let's give the car to Anu and Anu के पास जाएगी. तो ये आपस में हम उनको फैसिलिटी, यस, और क्या इसमें टर्न टेकिंग भी है जी. तुम्हारी बारी मेरी बारी, जो कि हमारे बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है सीखने में, तो फैसिलिटेट करके इस तरीके से हम प्ले सिखाएंगे. अगर हम बोलें कि वो 100% अपने पेयर ग्रुप की तरह खेलेंगे तो वो शायद क्या होगा, हमारा ज़्यादा एम्बिशियस होना होगा. Their play might be limited always as compared to other children, but still we can facilitate it. बट हमेशा हमारा गोल ये रहना चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी तरह के प्ले में इन्वॉल्व हो, कि हमें फैसिलिटेट करना है, हमें मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है बच्चों को. ताकि अगर हम ना भी हों तो फिर उस बच्चे को मालूम होगा कि आई हैव टू वेट फॉर माई टर्न. क्योंकि एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है, अगर वो अपनी टर्न के लिए वेट करता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है कि जब दूसरे खेल रहे हैं मुझे उनको भी बारी देनी है. आई हैव टू लुक एट देम व्हाट दे आर डूइंग and wait for my turn, then he will be accepted. Even if he cannot play at the level of other children, they will be happy to accept him. But if he is disruptive,
he doesn't follow the rules of the game, then it is very difficult for his peer group to accept him in the play. So that has to be taught. Turn taking, waiting, and all these skills have to be taught. जी. Now we'll go on to some well-established approaches to intervention. Now these are maybe new names for many. Well-established approaches to intervention. Lova's technique, which is known to the general public as intensive behavioral intervention, IBI. It's a form of treatment guided and developed by Dr. Ivar Lovaas, a psychology professor. The technique consists of an intensive behavioral intervention which is carried out early in the development of autistic children. It involves breaking skills down into their most basic components and rewarding positive performance. It is also known for its previous use of aversive to punish unwanted behaviors. The Lovaas का नाम जो है, it's a very well known name in the field of autism, and a lot of teaching methodologies have been developed by Lovaas, and now they have different names because they have been modified, they have been made more sophisticated, more acceptable. Because in the Lovaas original method, he believed in punishing a child for a wrong response, and we know it's unethical, it's unacceptable today. And that is one of the major criticism of Lovaas. Lovaas works a lot on trials. Trials means, when the child sits and they give trials. Okay, do this and show me your nose and tap the table, give me the car. So these are trials, and the child is taught to give these responses. और वो जो रिस्पॉन्सेज देता है वो कोई नई चीज़ नहीं है. रिस्पॉन्सेज देने के लिए जो स्पेशल एड में हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, शेपिंग, चेनिंग, रीइंफोर्समेंट देना, लाइक डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट देना, वो सेम है. बट द मेथड इज नोन एज Lovaas because he initiated it with very young children. And the plan that he made was a lot around language behaviors. You understand language and you do something. So Lovaas is like the first one, and after that his other methods like the Lovaas methods were given new names. And what were these? Let's see. VBA. It is a therapy system that is founded on the well-established principles of operant conditioning. Provides a training program to teach skills necessary to use language in everyday life. It strongly promotes errorless teaching. VBA का full form है Verbal Behavior Analysis. और VBA के according क्या है कि कोई भी behavior जो कि किसी दूसरे लिसनर की प्रेजेंस में किया जाए या ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में किया जाए, it's a verbal behavior because it communicates something. So according to VBA, if a child cries because the child wants milk, or if the child bangs his head against the wall because he wants to go out or he wants attention, they call it verbal behavior. It means communicative behavior. All that needs to be done is we have to alter the behavior. So verbal behavior approach is an outcome of Lovaas, but verbal behavior approach believes in errorless teaching. It's almost like if I have a pen in my hand and I'm asking this child to touch the pen. So if she does not touch it, so I will say once, pen touch karo, and she's not touching, immediately within 2 seconds I'll say pen touch karo, pen touch kiya. This is known as errorless teaching. If I have a pen and a book and I tell her to touch a pen and she goes to the wrong one, ab wrong pakdiye, immediately I guide her to the right one. Correcting the... Yes, I don't let her make a mistake. That is the basis of verbal behavior approach, and it is again a language based program. और ये program बड़ी खूबसूरती से कुछ चीजें बताता है. Like for example, it says a child may use one word. Let's say the one word is biscuit. The child may look at the picture of biscuit in a magazine and he will say biscuit.
तो वो बिस्किट मांग नहीं रहा है, वो खाली क्या कर रहा है, लेबल कर रहा है कि ये बिस्किट है. समटाइम्स उसके पास ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, 2 वर्ड फ्रेज भी नहीं बोलता, ऑटिज्म है, उसको बिस्किट चाहिए, तो वो बोलता है बिस्किट. तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. उसको कोई पूछता है कोई खाने की चीज़ का नाम बताओ, और वो बोलता है बिस्किट. So VBA says that the same word is used in different functions, for different functions of language. Autistic children may use the word rigidly only in one function and not the other. वो बिस्किट मांगने के लिए तो बिस्किट बोलता है, लेकिन दूसरे टाइम पे बिस्किट नहीं बोलता. दिस प्रोग्राम वर्क्स ऑन ऑल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम. एक ही ऑब्जेक्ट था बिस्किट, लेकिन उसके पर्पस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग. यस, बिल्कुल. कभी वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, कभी रिक्वेस्टिंग के लिए, कभी फंक्शन के लिए कि खाते हैं. दैट्स द थिंग. सर टेल मी समथिंग व्हिच इज रेक्टेंगल, ही में से बिस्किट तो एक फीचर है ग्लूकोज बिस्किट का. सो लाइक दैट. सो दिस इज VBA. दिस इज incidental teaching, IT. IT is a NT used to get elaborated language by waiting for the child to initiate conversation about a topic and then responding in ways that ask for more language from that person. So basically incidental जो learning है ये भी behavioral approach है. It is NT. NT means naturalistic teaching. So इसमें क्या है, जो टीचर है वो ऑटिस्टिक बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं साथ में, बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, और वो वेट करते हैं कि सपोज उन्होंने कार है, बच्चे को कार, या बच्चे को पजल पसंद है, तो उन्होंने पजल रख दिया बच्चे के पास, और फिर थोड़ी देर के बाद पजल हटा के थोड़ा अलग कर दिया और एक कार आगे रख दी. बच्चे को कार बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है सपोज, तो बच्चा एकदम क्या करेगा, वो या तो पजल की तरफ जाएगा या एक टीचर को देखेगा कि मुझे ये वापस दो, और वहां से टीचर इनिशिएट करेगी पजल, हम पजल फिक्स करेंगे, फिक्सिंग पजल. सो शी वर्किंग ऑन लैंग्वेज. पजल फिक्स करेंगे, चलो फिक्स करो, चलो इधर लगाओ, चलो उधर लगाओ. सो दिस इज बिल्डिंग ऑन लैंग्वेज विद द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. राइट, क्योंकि हमने पहले उस चीज़ का वेट किया कि बच्चे को क्या पसंद है, उसको किस चीज़ के साथ फॉरवर्ड करना है, तो तब आगे जाके एक्सपर्ट ने उसके साथ कन्वर्सेशन और उसका इंटरेस्ट है सीखने में, लैंग्वेज में. एंड वी विल टॉक अबाउट वन मोर मेथड व्हिच इज नोन एज PVT. What PRT? What is PRT? What does PRT stand for? Pivotal Response Training. What are pivotal behaviors? Behaviors that are central to a wide area of functioning. The two main pivotal behaviors, identified pivotal behaviors that affect a wide range of behaviors in children with autism: motivation, joint attention, distractibility. तो ऑटिज्म में हम देखते हैं कि बच्चे की मोटिवेशन लेवल काफी लो रहती है, उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कुछ किसी को करके दिखा के प्रेज लेने के लिए, बिकॉज सोशल स्किल्स की कमी है, तो वो डिमोटिवेटेड रहते हैं, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सेंसरी डिसफंक्शन है, सेंसरी इंटीग्रेशन की कमी है, तो कभी लाइट्स को देखने लग जाएंगे, कभी किसी चीज को. और दूसरा है जॉइंट अटेंशन, कि दूसरे के साथ एक साथ मिलके काम करना. तो जो पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग मेथड है वो कहता है कि सारे मेथड्स ठीक हैं, लेकिन जब तक आपने मोटिवेशन पे काम नहीं किया, जब तक आपने जॉइंट अटेंशन पे काम नहीं किया बच्चे के साथ, जब तक आपने उसके साथ एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बनाया, तब तक वो बच्चा रेडी नहीं होगा किसी और चीज़ को सीखने के लिए. तो ऑब्वियसली एक सवाल हमेशा मन में आता है कि इतने सारे मेथड्स हैं, तो कौन सा मेथड बेस्ट होना चाहिए? क्या हम सेंसरी इंटीग्रेशन करवाएं अर्ली इंटरवेंशन में? क्या हम बच्चे को VBA करवाएं, वर्बल बिहेवियर? क्या लोवास का पुराना मेथड यूज़ करें, या हम इंसिडेंटल ट्रेनिंग या पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग करें? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट करेक्ट टू से कि कोई एक मेथड बिल्कुल बेस्ट है बच्चे के लिए. ऑलवेज ऑलवेज वी वॉन्ट टू रिमेंबर वन थिंग कि अ कॉम्बिनेशन इज़ बेस्ट. और इस कॉम्बिनेशन में आजकल बायोमेडिकल रिसर्च बहुत आ रही है. बायोमेडिकल, दिस इज स्टिल अंडर रिसर्च. फूड सप्लीमेंट्स आर गिवन, विटामिन्स, cod liver oil, omega, elimination of certain food products, gluten free, casein free diet.
मिल्क एंड गेहूं खाने से हटाने से ऑटिस्टिक सिम्टम्स कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि कम हो जाते हैं, तो डाइटरी इंटरवेंशन भी दे रहे हैं. छोटे बच्चों के साथ बहुत यूज हो रही है ये चीजें. वी रियली डू नॉट नो बिकॉज दे आर नॉट प्रूवन. So the next question which comes to mind is, are there any medications which will help the child? Medication, there is no medication that can cure autism. Severity of symptoms may be reduced by some medicines. Medicines must be the last resort, strictly given by a qualified doctor. Medication is not the answer to autism, क्योंकि autism lifelong condition है. कई बार, और छोटे बच्चों के लिए तो वी विल नॉट रिकमेंड मेडिसिन फॉर हाइपर एक्टिविटी और एनीथिंग. सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, एजुकेशन, बिहेवियरल मेथड्स आर मच बेटर. टीनेज वगैरह में जाके कई बार बहुत सिम्टम्स सिवियर अगर हो जाते हैं तो मेडिसिन को हम कर सकते हैं ट्राई, बट ओनली विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड एडवाइस. सो what is the best form of intervention, early intervention for children with autism? A holistic approach is the best. Take the best out of all the methods that are prevalent and make a complete program, make a complete holistic approach for the child, and have a multidisciplinary team that works across all skill areas of the child. जी मैम, जैसे कि आज आपने डिस्कशन में हमें बताया कि अगर हम इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं और बेसिकली फोकसिंग ऑन टू द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, तो उसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक डिस्कशन में जाना कि अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली होता क्या है, उसकी अप्रोच कैसे होती हैं. मॉडल्स में जैसे हमने देखा कि होम बेस्ड मॉडल भी होता है, सेंटर बेस्ड मॉडल भी होता है, एंड एज बाय द ओपिनियन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ द बेस्ट जो हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं. साथ में ये होता है कि बच्चे के साथ सेंसरी डिसफंक्शनिंग भी होती है, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ वर्कआउट करना, प्लान करना कि किस सेंसेस में बच्चे के साथ प्रॉब्लम है. मे बी बच्चा ओवर सेंसिटिव हो सकता है या अंडर सेंसिटिव हो सकता है. ये हम एक चेकलिस्ट के थ्रू जानते हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया. और इस चेकलिस्ट के लिए हमें फैमिली मेम्बर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बेसिकली ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपनी फैमिली के साथ घर में, तो ज़्यादातर जो बच्चे के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पेरेंट्स को अच्छे पता होते हैं. तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, किस सिचुएशन में रह के वो और बिहेव करता है. और हमने वीडियोस के ज़रिए भी जाना कि कैसे हम टेक्निक्स के थ्रू सेंसरी डिसफंक्शनिंग पे काम कर सकते हैं. फाइनली आपने बताया कि जैसे प्ले है, प्ले भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है. बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स अगर कर सकता है लेकिन फाइन मोटर स्किल्स नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम कैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. मेडिकेशंस शुड बी द लास्ट ऑप्शन एज इट वाज गिवन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स. और फर्दर हम एक पूरी टीम होती है एक्सपर्ट्स की, प्रोफेशनल्स की, जिसमें बच्चा, पेरेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूडेड होते हैं फॉर बेटर आउटपुट. ये आपने बताया हमें ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में. अर्ली इंटरवेंशन हम तभी कर सकते हैं जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो हमारे साथ, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन अवेयरनेस के साथ आती है. हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे हम माइलस्टोन्स चेक कर सकते हैं. पेरेंट्स का अवेयर होना, उनको ये जानना कि पर्टिकुलर एज में बच्चे के अगर ये काम करना चाहिए था लेकिन हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसमें हमने बात की थी रेड फ्लैग्स के बारे में. आपने बताया था कि डेंजर साइन की हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक प्रो जैसे हम बात करते हैं कि फाइनली कंक्लूजन डायग्नोसिस से पहले हम फाइंड आउट करें कि ऐसा हो सकता है, तो हम उसको रूल आउट करने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं. और इसमें जैसे आपने एज क्राइटेरिया बताया था कि मेनली बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है 5 इयर्स तक होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट, तो उसमें दिस इज द क्रिटिकल एज टाइम पीरियड. हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्रेन इज वेरी रिसेप्टिव जी टू लर्न. जी, और उसमें हमने देखा कि लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इट्स वेरी क्रिटिकल वाइल डीलिंग विद द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की कॉम्प्रिहेंशन कैसा है उनका और एक्सप्रेशन कैसा है. मैम, जैसे ये सब बातें हमने आज डिस्कस की और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एग्जाम्पल्स के साथ हमारे व्यूअर्स को, और हमारे व्यूअर्स में कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो ओवरव्यू देने के लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग में. जो भी आपका काम करने का तरीका है, अपनी टेक्निक्स और ऐसी टेक्निक्स जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों
और ऐसे हम बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं घर में उनके पास जो अवेलेबल मटेरियल है, तो इस तरह से एक प्रॉपर वर्कआउट हम कर सकते हैं प्लान का। बिल्कुल, इट इज पॉसिबल एट होम। जी, thank you so much ma'am for giving all these informations to our viewers. That was all about the today's discussion. Thank you so much.